It's your test today. So get ready, everybody, for what you have learned till now. We'll ask you some questions today. Okay. So everybody is ready? Hmm? Everybody is ready? Yes. Am I audible? Hmm? Hello. I'm audible now. Yes, sir. Okay. Okay, today we'll be having a very interesting session where we'll ask some questions to you. You need to answer, and not only that, we'll learn all those things one by one, whatever we have learned till now, so that it will be a right test for you to check back what you have learned. Okay, and this will help you to evaluate yourself that how much I am capable of doing some research or some findings based on the real problem. Today I will not gonna tell you anything. I will just ask you some questions. You need to answer those. Now to answer that, what you can do, you can type your answer in a message box. Okay, you have message box with you always, as you know. Here it is a message box. Here this one. Chat with everyone. Okay, you need to submit your answer to this box. Okay, but you should not submit it until and unless I have been asked. Whenever I will ask you submit, everybody should submit that, so that we will be able to see what is the response, how everybody perform. Okay, so this will be a surprise test for us, at least for half an hour, and we will then continue our session. Okay. So everybody got this message? What you have to do? For the answer question, you have to answer this. Okay, and for every question there will be number. For example, question one, you need to answer for that. Question one, and then you need to answer. Like. Okay. So so our first question is this one. You need to answer this. From where I can get the codon usage information? Tell me the database name. This is my first question to you. From where I can get the codon usage information? Tell me the database name. So I think everybody must have typed it. So now you submit your answer in chat box. Everybody. Only 4 has given the answer. Question was very easy. GenBank, NCBI, GenBank, GenBank. Others want some more time? Now what is the right answer?
From where I can get the codon usage information? Tell me the database name. What is the name? Correct. What is the correct answer? Everybody, anybody of you can tell me what is the correct answer? Can anybody tell me? What I have asked is from where I can get the codon usage information, right? Codon usage information. Tell me the database name. It's a taxonomy database. भूल गए? है ना? सब भूल गए? जीन बैंक और एनसीबीआई इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड है ना? एनसीबीआई तो है डेफिनेटली, पर एनसीबीआई में कौन सा? जेन बैंक कैसे दे सकता है कोडॉन यूसेज? कोडॉन यूसेज कहाँ बताता है वो? समझा? इंटरैक्शन करेगा कोई? कोई ऑन करे माइक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, how many ORFs mRNA can code? Type it and then I will say submit, then submit. How many open reading frames mRNA can code? It's a very simple question actually. Everybody must have typed it. Okay, submit. Very good. Only 3? Now why this is happening? We are, I think, okay, now this is increasing. 6. Whenever I am saying submit, submit it. Don't wait. Otherwise, it will not be the eligible answer. Okay, everybody can see an answer. Huh? So, all are saying okay, 6. Very good. Now, second question. Third question. Out of 6 open reading frames, how many are real in protein coding? Answer it. You can answer it. How many are real? Submit. Most of the participants have told us 2 and 3. Now, जिन्होंने 3 बोला, कैसे 3 रियल है बताएंगे जरा? How out of the 6 open reading frame, answer for this will be remain 3. Out of the 6 open reading frame, how many are real into protein coding? 6 ओपन रीडिंग फ्रेम में से कितनी रियल होती है ये बताना था. आंसर 3 कैसे हो सकता है?
जिन्होंने 3 लिखा वो उसमें से कोई एक बताएगा कि उनका क्या फिलोसफी था, सो दैट मुझे समझेगा कि क्या प्रॉब्लम हो। बताया कोई? डरो मत, अगर गलत हुआ है तो भी अच्छी बात है ना, गलत हुआ है तो समझेगा हमको। आपकी क्या फिलोसफी थी उसके पीछे? अरे भाई एक ही तो रहेगी ना ओपन रीडिंग फ्रेम करेक्ट। 6 ओपन रीडिंग फ्रेम कोड करता है और उसमें से एक ही रियल ओपन रीडिंग फ्रेम होती है ना, हमने यही तो पढ़ा। ओनली वन कोड्स, 5 गलत हो जाती है ना। समझ रहे? असेसमेंट भूल जाते हैं हम रोज दारू पीते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, थोड़े समय तक नशा रहता है, बाद में भूल जाते हैं। इसलिए जो भी सीखा एक बार सीख लिया उसको हार्ड डिस्क में डाल ही दो अपने, और एक मेंटेन रखो उसको, भूलना नहीं। अगर आप भूल गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, साइंस है, साइंस को कभी भूल नहीं, एक बार सीख लिया उसको। क्वेश्चन नंबर 4, which is that last program, searches nucleotide database against nucleotide sequence. Which is that BLAST program searches nucleotide database against nucleotide sequence. ठीक है, आंसर सबमिट। वेरी गुड, सो इट्स वेरी इजी ना, सो फट से आ गया सबको। लास्ट टाइम, हाँ आसान है, आसान है, बहुत आसान है ना, सबको आ गया। जो सबसे कम आंसर देगा उसको पार्टी देनी पड़ेगी सबको। फोन पे से 100 रुपीज शेयर करना पड़ेगा सारे पार्टिसिपेंट्स को, इसलिए जो सबसे कम देगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। दैट ब्लास्ट एन जो है वो राइट आंसर है, करेक्ट। ठीक है, ब्लास्ट एन राइट आंसर, राइट। अब मैं आपको टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइप 4 का क्वेश्चन। ठीक है, I have 16 RNA gene and I wanted to convert it into protein sequence. How can I convert it? Whether codon can be useful? Type it, don't submit till I say. Type it, whatever your answer is. I will give you 3 minutes for this. इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग भी रह सकता है, शॉर्ट नहीं रहेगा।
Submit it. Submit the answer. किसी ने आंसर सबमिट नहीं किया। क्वेश्चन क्या है? आंसर सबमिट कर रहा है कोई? मुझे लगता है तब हो गया आपके लिए, पर आंसर बहुत आसान था, बहुत आसान था। आंसर क्या है इसका? कोई बताएगा? क्वेश्चन क्या है? कोई ब्लास्ट एक्स। हाँ सर, टी ब्लास्ट एक्स से हम आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसका इनपुट एमआरएनए करके अपन उसको ये कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब। और कोई आंसर? और कोई आंसर? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यही यही सही आउटपुट है आपका। समझिए 10-15 दिन जो भी पढ़ा, अगर हमको आंसर उसके नहीं आ पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से उसको आंसर, क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। सर, एक्चुअली इट्स आरआरएनए व्हिच कैन नॉट ट्रांसक्राइब प्रोटीन। अरे भाई वो प्रोटीन कैसे देगा? यस सर। 16S RRNA जीन है ना। I have 16S RRNA जीन। मैंने आपको इसीलिए तुम्हारे दिमाग को ट्विस्ट कर दिया कि थोड़ा मुश्किल सवाल पूछो, तो आप ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था। अरे I have 16S RRNA जीन, so नो प्रोटीन। नो प्रोटीन कोडिंग। सिंपल आंसर था इसका, इसका कोई प्रोटीन कोड हो नहीं सकता भैया। समझा क्या? सब लोगों को समझा क्या? अरे हाँ ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगले वाले ने ट्विस्ट कर दिया तो आप पूरा ट्विस्ट मत हो जाइए। अपना भी एक ब्रेन लगा के उसमें सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर लें। मजा आ रहा है ना आज? यस सर। मजा आ रहा है ना? आज कुछ अलग हो रहा है तो ये रियल टेस्ट है आपकी, ठीक है? अगला क्वेश्चन। I have a gene of eukaryote, ठीक है? And I wanted to convert into protein, ठीक है? यानी जीन का सीक्वेंस को हमको प्रोटीन में कन्वर्ट करना। Can I do it? And if yes, how? अगर आप हाँ बोलते हो तो क्यों, कैसे? और अगर ना बोलते हो तो क्यों? इसका आंसर लिख के दीजिए।
सबमिट सबमिट कर दिए। दो आंसर आए हैं अभी तक। और कोई लिखना चाह रहा है? कोई लिख रहा है? और ब्लास्ट एक्स क्वेश्चन इतना उतना आसान नहीं है। अब मैंने आपको ये नहीं बोला कि ये टाइप डी का क्वेश्चन है। ये टाइप डी का क्वेश्चन है। चलिए आंसर क्या होगा? जिन्होंने ब्लास्ट टेक बोला कोई एक। रिंकल मैडम आप ऑन कर लीजिए अपना माइक। हाँ आपने बोला ब्लास्ट एक्स राइट। बट हमने एक चीज पढ़ी। हाँ बोलिए। Gene nucleotide transfer and nucleotide will convert into protein. हाँ करता है बिल्कुल है। पर देखिए एक चीज है, जीन ऑफ यूकैरियोट, मैंने क्या बोला है देखिए यहाँ पे जीन ऑफ यूकैरियोट है ना। और हमने ब्लास्ट एक्स का भी इस्तेमाल किया है जब हमारे पास क्या होना चाहिए? एमआरएनए Of nucleotide. हाँ हमारे पास अभी कौन है? पहले जीन है। अब जीन ऑफ यूकैरियोट में कौन कौन होता है? क्या होता है? यूकैरियोटिक जीन में क्या क्या होता है? हाँ इंट्रॉन एंड एक्सॉन होते हैं ना। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या? No, sir. नहीं ना, समझा क्या आपको? ब्लास्ट एक्स इज नॉट अ रॉन्ग आंसर बट इट इज पार्शियली रॉन्ग। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? mRNA. हाँ एमआरएनए। जो जीन है उसका एमआरएनए आपको कोडिंग सीक्वेंस ढूंढनी पड़ेगी। कोडिंग सीक्वेंस निकालने के बाद ही आप उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रोटीन में। समझा क्या आपको सब लोगों को? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना, हम सीख तो रहे हैं बिल्कुल। मेरा भी पूरा एम है कि आपको अच्छे सिखाओ बट आपको प्रैक्टिकली वो आना चाहिए। कल जाके मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो आपको तो करना आना चाहिए ना। हमको तो पैसा कमाना है इसके बेसिस पे। अगर हमको ये नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, कभी भूलना नहीं है इसको जिंदगी में। वो वर्ड उसका याद ही रखना कि ब्लास्ट एक्स तभी कर पाते हैं जब आपके पास में एमआरएनए सीक्वेंस होगा। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, I have a prokaryotic gene and I wanted to convert it into protein. Can I do it? If yes, how? And if not, why? ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मुझ पर विश्वास नहीं रखोगे नहीं। सिंपल बोला तो टफ है, टफ बोला तो सिंपल है। आंसर दीजिए इसका। कर सकते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक जीन है तो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Yes, how? And if not, why? Submit answer. Right. Everybody is saying blast X. So all of you are correct.
Prediction. What is the right step to cut the DNA at a given point in the sequence using software for what is the right step to cut the DNA at a given point in a sequence using the software for restriction in nucleus? यानी आपको ये बताना है कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट आपको आपका डीएनए एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस से कट करना पड़ेगा। यानी आपको सॉफ्टवेयर बताना पड़ेगा, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर की प्रोसेस बतानी पड़ेगी, कहाँ डीएनए पुट करेंगे, फिर डीएनए के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उसके अंदर में क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे। आपने यूज किया है इसको, तो शॉर्ट में समझाएगी कौन सा है, ठीक है। What is the right step to cut the DNA at a given point in a sequence using software for restriction in nucleus? आपने अगर सॉफ्टवेयर भी बता दिया, सॉफ्टवेयर के अंदर के 2-3 पॉइंट्स भी समझा दिए मुझे, तो भी बहुत होगा। Submit. सिर्फ एक बोला है नेप कटर, इन्वॉल्व सर्टेन जेन मार्क, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। नहीं, नेप कटर इज करेक्ट आंसर। नेम ऑफ सॉफ्टवेयर इज जेन मार्क, जेन मार्क इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। नहीं, जेनमार्क गुलशन, जेनमार्क को जीन सर्च करने के लिए है ना, हमको क्या ढूंढना है, रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस करना है, ठीक है। तो हम जो स्टेप्स अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नेप कटर यूज कर सकते हैं जैसे सबने बताया, या फिर आप किसमें जा सकते हैं, बायोडिट में जा सकते हैं। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट देना पड़ेगा डीएनए का, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन मैप, है ना। रिस्ट्रिक्शन मैप सिलेक्ट करने के बाद में आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। सिलेक्ट एंडोन्यूक्लियस के बाद में बोलेंगे जनरेट मैप, है ना। ये स्टेप्स है ना, ठीक है। अभी आपको याद होना चाहिए, ऐसे ऐसा याद रहना चाहिए आपको हर चीज, ठीक है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आपको जो फ्यूचर में काम में आने वाली चीज है उसको जिंदगी में भूलोगे, ठीक है। नेप कटर या बायोएडिट में जाएंगे, उसमें इनपुट डालेंगे सीक्वेंस का, उसमें से रिस्ट्रिक्शन मैप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एंडोन्यूक्लियस, जनरेट मैप, ये प्रोसीजर है, ये प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी conserved domain one protein have? प्रोटीन के पास कितने कंजर्व डोमेन रह सकते हैं?
Submit. One or more. One or more. करेक्ट है. वन और मोर ज्यादा है. कंशा 3 नहीं रह सकते, एक या एक से ज्यादा रह सकते हैं. ठीक है, करेक्ट है. वन और मोर, ये याद रखिए. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमको पता रहने चाहिए. वन और मोर, राइट. एक या एक से ज्यादा वो रह सकते. ठीक है. Conserved domain cannot mutate. Yes or no? Submit. Submit. Conserved domain cannot mutate. Maybe, it may mutate. Yes, it may mutate. No. See, बड़े फनी आ रहे हैं ना क्वेश्चन. Maybe, it may mutate. No. So majority of say are saying that mutate नहीं हो सकता, इसीलिए उसका नाम क्या है? कंजर्व्ड डोमेन. पर ऐसा नहीं है. कंजर्व्ड डोमेन कैन नॉट म्यूटेट. नो, है ना? दे म्यूटेट और नो? दे म्यूटेट, राइट. वो म्यूटेट हो सकते हैं. ठीक है, म्यूटेट होना हर एक अमीनो एसिड का एक जन्म सिद्ध अधिकार है, बट वो सिलेक्शन में चले जाते हैं. ठीक है, सिलेक्शन में चले जाते हैं. ठीक है. I have mRNA and I wanted to convert it to prokaryotic gene. Can I? If yes, how? अगर मेरे पास एक mRNA सीक्वेंस है, मैं उससे वापस जीन बना सकता हूँ कैसे? If yes, how? मजेदार क्वेश्चन है ना. जीन से एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया, पर आप तो उल्टा बोल रहे हो सर. एमआरएनए से जीन बना दो. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? पॉसिबल है या नहीं है? इफ यस तो कैसे? ये सारे क्वेश्चंस आपका ब्रेन एकदम क्लीन कर देगा. यानी थॉट के मामले में अगर ये क्वेश्चंस नहीं पूछता मैं आज, तो शायद आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते बाद में जब किसी ने ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ लिया होता. आपके पास एमआरएनए, आप चाहते हो उसका फिर से जीन बनाया जाए, तो बना सकते कि नहीं बना सकते? और बनाना है तो कैसे बनाए? थोड़ा सोच के आंसर देना.
पहले तो ये देखना पड़ेगा कि mRNA कैसे बना, mRNA कैसे बनता है। टू प्रोकैरियोट है तो आसान है। चलिए आंसर देखते हैं, सबमिट करिए। सबमिट। कोई आंसर नहीं दे पाया इसका। क्या हो सकता है, कोई क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, भले टाइप नहीं कर पाया फिर भी कोई डिस्कस करेगा। चलिए आंसर देते हैं। आपके पास क्या है, mRNA सीक्वेंसर है। तो mRNA का क्या बनाना चाहिए हमको, प्रोटीन। हाँ mRNA को क्या प्रोटीन बनाना चाहिए। प्रोटीन बनाना नहीं, हमको क्या बनाना है, प्रोकैरियोटिक जीन। जीन चाहिए हमको। mRNA से जीन की तरफ जाना है वापस। mRNA किससे बना, जीन से। mRNA किससे बना, जीन से बना। ठीक है, तो मान के चलते देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है वैसे, ज्यादा हार्ड नहीं है। AEGCC ऐसा है, राइट है ना। तो इसका उल्टा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, अगर mRNA बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। बराबर है, हाँ है ना। तो ऊपर वाला कौन है, जीन। नहीं, हमारे केस में ऊपर वाला कौन है, हमारे केस में ऊपर वाला कौन है, mRNA। mRNA है ना, वो ये है एक्चुअली। समझा क्या आपको, ऐसा है ना वो, राइट। सबको समझ रहा है। तो ये कौन हो गया, जीन। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। हाँ, अगर आपको इसका और एक कॉपी बनाना है, ठीक है, तो ये पूरा पकड़ लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे पूरे टीटी कर दीजिए, तो ये कंप्लीट जीन बन जाएगा आपका, देखो है ना। ये उसका कॉम्प्लीमेंट, बराबर है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना स्ट्रैंड, और ये उसका कॉमन स्ट्रैंड। समझ रहे हैं क्या, इसको कॉमन स्ट्रैंड हो गया ना, ये और ये देखो कॉमन, इसलिए यहाँ यू की जगह क्या रहेगा, टी। तो ये कॉमन स्ट्रैंड हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया, दैट्स इट। कोई बड़ी बात थी क्या, नहीं। पर तकलीफ कहाँ बढ़ जाएगी, ओके। यूकैरियोट्स में बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि यूकैरियोट्स में वापस जाने के लिए क्या इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, इंट्रॉन्स। वेरी गुड, इंट्रॉन्स। आपको इंट्रॉन्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगी। इंट्रॉन्स तो हमने काट दिए ना, काटने के कारण हमको वो पता नहीं चल पाएंगे। इसलिए अगर हमारे पास mRNA है तो मैं उसका जीन बना सकता हूँ, बराबर, बट दैट टू फॉर ओनली फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सीक्वेंस के बेसिस, हाँ सर्च करके तो हम सब कुछ कर सकते हैं, डेटाबेस को सर्च करके हम सब कुछ कर सकते हैं, तो सीक्वेंस के बेसिस पे सिर्फ प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या पढ़ा हमने, चलिए मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको।
If I have a protein sickness and I want mRNA of that, how did I get that? अब मैं आपको हिंट भी देता हूँ, अगर हिंट दे दिया तो फिर आपका स्पून फीडिंग हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। मेरे पास प्रोटीन सिग्नल है तो मुझे उसका एमआरएनए चाहिए, हाउ विल आई गेट दैट? सबमिट। टी ब्लास्ट है, बराबर है क्या? चेक किया है क्या कि टी ब्लास्ट एक्स यूज करना पड़ेगा? बराबर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है ना वो, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। मेरे पास क्या है? देख लो, बराबर है क्या? बराबर है ना? करेक्ट है। सो आंसर इज करेक्ट। टी ब्लास्ट एंड बराबर है, टी ब्लास्ट एंड is correct. So if I have a protein sequence, I want to mRNA of that. How will I get that? Through this. Next question. Where to submit sequence? Tell exact name of the database, not NCBI or DDBJ. कहाँ सबमिट करते हैं? क्या नाम था उसका? सबमिट। जैन बैंड, ये आंसर है। नहीं, नहीं है आंसर। सिक्विन था ना? सिक्विन यानी जीन बैंक के अंदर ही सबमिट लिंक में था सिक्विन। ठीक है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हमने एक सबमिट बटन पर क्लिक किया था, उसके बाद में आप अंदर जाके देखोगे तो उसका नाम है सिक्विन। ठीक है, ठीक है, टफ क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं है। आई नो। Relaxation number. क्या है एक्सप्रेशन नंबर? एग्जांपल बताइएगा। 40 पॉइंट है।
Submit. आइडेंटिफायर एक ने बराबर आंसर दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। एक्सेशन नंबर पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना। एक्सेशन नंबर क्या है? इट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, जो हर एक सीक्वेंस को दिया जाता है। एग्जांपल के जैसे कुछ इस तरह से 8486 एक यूनिक नंबर है उसका। Next question. Conserved domain contains pattern or not? उसके अंदर पैटर्न होता है या नहीं होता है कंजर्व्ड डोमेन के अंदर? Submit. Yes, they have patterns. Correct. Yes. सबने yes बोला है ना, सबको पता है। ये अभी फ्रेश है ना आपके दिमाग में, तो आप आंसर फटाफट आ रहे हैं क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा, और जो 15 दिन पहले पढ़ा वो सब भूल गए आप लोग। ऐसा मत करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। यस, दे डू कंटेन पैटर्न, है ना। पैटर्न के बेसिस पे तो उसके अंदर कंजर्व्ड डोमेन है ना। Can conserved domain evolve? कंजर्व डोमेन जो प्रोटीन के अंदर होता है वो इवॉल्व हो सकता है या नहीं? सोच के आंसर देना। कंजर्व डोमेन इवॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? Submit. Yes, सभी बोला। आकांक्षा का आंसर एकदम सही है। Yes, they may evolve through natural selection slash mutations. Yes, they evolve, right? वो इवॉल्व होते हैं, उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं ना, इसलिए तो म्यूटेट होते रहते हैं। What will happen if conserved domain mutate at active amino acid position? Do protein dysfunction or not? So उसके आंसर तो what will happen if conserved domain mutates at active amino acid position? Do protein dysfunction? Yes or no? Submit.
अगर उसके एक्टिव अमीनो एसिड्स में म्यूटेट हो गया तो वो डिसफंक्शन करेगा या नहीं करेगा? सबमिट करिए। सबमिट। इतना मुश्किल भी नहीं है। चलो सबमिट आया नहीं मेरे पास। आ गया सबमिट। Yes. If mutated amino acids code for a different protein, it may dysfunction. Yes. Okay. सबने yes कर दिया। Yes. आंसर इज yes। ठीक है। यानी अगर उसके एक्टिव पोजीशन पे अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो हमने बताया था ना कि सारे अमीनो एसिड्स काम में नहीं आते, कुछ कुछ अमीनो एसिड्स जो पकड़ के रखते हैं डेटा को, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट करते हैं, अगर वो म्यूटेट हो गए तो डेफिनेटली वो प्रोटीन क्या करेगा? डिसफंक्शन। Other domains give structural features to the protein, true or false? कंजर्व डोमेन का काम प्रोटीन को स्ट्रक्चरल एक्टिविटी देना है या नहीं? सबमिट। करेक्ट। सब लोग बोल रहे ट्रू है। यानी सी क्या होता है ना, फंक्शन जो है प्रोटीन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंजर्व डोमेन्स के ऊपर, राइट? यानी आर्किटेक्चर जो है प्रोटीन का वो कौन डिसाइड कर रहा है? कंजर्व डोमेन। ठीक है। तो कंजर्व डोमेन का राइट शेप देना ही उसका फंक्शन है एक्चुअली। ठीक है। यानी वो राइट इन्वायरमेंट उसको देता है। ठीक है। वेरी गुड। सर्च करके करना नहीं, जितना आता उतना ही लो। चीटिंग करोगे तो जिंदगी खुद के साथ चीटिंग हो जाएगी। सबमिट। लोगों ने लिया, सब लोग भूल गए बाकी के। क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी हमने पढ़ा था ना। अंशांशों को सिर्फ एच मालूम है, वो है होमोलॉजी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इतना तो पता है, अच्छी बात है। क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी करेक्ट है। तो ये भूलो मत, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए।
क्लास का एग्जाम्पल है, कैट के अंदर क्लास पढ़ा था ना, कौन से एक से ज्यादा भी दे सकते हो अगर किसी को देना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ क्लास इन कैट। सबमिट। सबमिट। थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन पूछा कि नहीं आता, इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। हर चीज को समझो, 10 बार उस वेबसाइट पे जाके देखो, तो ही उसका आप क्या बोल सकते, स्ट्रांगली अक्वायर कर सकते हो उसको। नहीं आता किसी को? बहुत आसान है। भूल गए? दो ही तो है उसके अंदर, एक तो अल्फा बीटा रहेगा, नहीं तो तीन रहेंगे, बीटा बीटा रहेगा या फिर कौन रहेगा, अल्फा अल्फा। तीन टाइप है उसके अंदर, है ना। 1 2 3 1 2 3 तीन ही क्लास है। अल्फा बीटा रहेगा, बीटा बीटा रहेगा या फिर अल्फा अल्फा रहेगा। ठीक है, उसी तरह दे सकते हैं। कौन सी तो भी पढ़ी थी हमने, याद होगा, आइडोलेज में कौन सी थी आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर फॉर्म किया था आइडोलेज ने अल्फा बीटा बना के? अल्फा बीटा मिला के उसने खुद स्ट्रक्चर बनाया, याद होगा तो। बंदूक से कैसे तो फिर मैच था वो। सबमिट। बंदूक, बंदूक की नाल, इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या बताऊं। बंदूक की नाल को क्या कहते हैं? आंसर सबमिट करिए, आता होगा किसी को। अल्फा बीटा बैरल, बंदूक की नाल की तरह बीच में हॉलो चेंबर था ना उसके, मैंने घुमा के भी दिखाया था आपको कि वो प्रोटीन के अंदर देखो बराबर बैरल की तरह दिखता है ना, आर्किटेक्चर। Tongue twister. Pattern makes signature or signature makes pattern in protein. ये समझ लो, नेट सेट के एग्जाम की तैयारी चल रही है आपकी। पैटर्न मेक्स सिग्नेचर और सिग्नेचर मेक्स पैटर्न। पैटर्न से सिग्नेचर बनता है या सिग्नेचर से पैटर्न बनता है? प्रोटीन के अंदर एक चूज करके टाइप करिए। अब बोलिए gunshot।
in the last sentence. I said consider culture. Nice balance. But attempt is nice. Okay, submit. Pattern makes signature. You are correct. पैटर्न में सिग्नेचर दिस इज करेक्ट है ना पैटर्न छोटा होता है सिग्नेचर बड़ा होता है ना सिग्नेचर सबको मिला के बनता है signature is a group of conserved domains or not. Yes or no. Signature is a group of conserved domain. Signature जो बन रही है वो group of conserved domain है या नहीं है? Submit. Yes, very good. Yes, correct है. जब पैटर्न है, पैटर्न में सिग्नेचर, पैटर्न से कौन बन रहा है? कंजर्व डोमेन. यानी डेफिनेटली कंजर्व डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ सिग्नेचर, राइट? CDD blast is used to find out what? अभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली पर आप आंसर दे रहे हो बहुत अच्छी बात है आपको याद है वेरी गुड यानी मैं सही सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग का भूल गए थोड़ा एनालिसिस का पर इधर वाला चीज याद है आई थिंक योर फेवरेट इज प्रोटीन प्रोटीन में ज्यादा आंसर है जीन में कम आंसर है CDD blast is used to find out. चलिए आंसर देखते हैं. Submit. Conserved domain. Conserved domain. सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना तो आपको मुश्किल हो गई. ठीक है बट करेक्ट आंसर है कंजर्व डोमेन. CDD ब्लास्ट क्या ढूंढता है कंजर्व डोमेन ढूंढता है ठीक है find the conserved domain primary structure is a protein sequence. Means, can we be able to search conserved domain from primary sequence? Primary structure. Primary structure is a primary sequence. Means, can we be able to search conserved domain from primary structure? Yes or no?
और अगर यस बोलते हो आप यस, देन एक्सप्लेन। अब आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए, टेक योर टाइम। और अगर आप नो बोलते हो तो ठीक है, पर आप जो भी यस बोलेगा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, नहीं तो सबमिट मत करो। वो आंसर मुंह में मजा नहीं आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस, है ना? मींस कैन वी बी एबल टू सर्च कंसर्न डोमेन फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर? ट्विस्टर एक्चुअली। थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ कोई लिख रहा होगा। सबमिट। किसी ने यस नहीं बोला, यस तो आसान है बोलना, उसके आगे का लिखना बहुत मुश्किल है भाई। समझ तो सबको गया है, वो ऐसा है, बीवी सबके पास है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। Let it be, just joking. You cannot explain a wife. It is just like that. आंसर बताऊं? आंसर बहुत आसान है, सिर्फ मैंने ट्विस्ट कर दिया है। यहाँ पे क्या बोला मैंने? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ प्रोटीन सीक्वेंस ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन सीक्वेंस है तो प्रोटीन सीक्वेंस ही क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? अरे भाई प्रोटीन सीक्वेंस है। और प्रोटीन सीक्वेंस से हम क्या ढूंढ सकते हैं? कंजर्व डोमेन ढूंढ सकते हैं ना। अभी तो ढूंढा CD, ये उसका आउटपुट, बस है ना, मजेदार है। तो आपको ट्विस्ट कर सकते, कोई भी हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन वी बी एबल टू सर्च, ऐसा, फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन वी बी एबल टू सर्च कंसर्न डोमेन, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा हाँ, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी मैं जो लिखूंगा वो बहुत टेक्निकल लिखूंगा, तो आप उसका आंसर बराबर सोच कर लिखना, ठीक है? I have to find the homology among the two sequences. Whose homology I don't want to search through the databases. Which program I can use? आपको उस प्रोग्राम का नाम बताना है। जो रेगुलर क्लास करेगा उसको पूरा समझेगा, ठीक है? इसलिए अटेंड जरूर करो, जितना भी पेन हो हमें अटेंड करना है। चलिए सर देखते हैं क्या दिया लोगों ने। सबमिट। आंसर सबमिट करिए।
टाइप क्वेश्चन है, ये मेरे सामने आते हैं मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में आए, मैंने ये सारे क्वेश्चन हैंडल किए, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने अपने जब 15 साल की जिंदगी में जो भी क्वेश्चन सुने हैं कस्टमर से, वही सारे तुम आपके सामने पुट कर रहा हूँ, so that आप भी उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्लस्टर डब्ल्यू सही आंसर है क्या? नहीं है, क्लस्टर डब्ल्यू सही आंसर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो उसी के अंदर आंसर है। देखो ना क्या लिखा है मैंने, I have to find the homology among the two sequences. याद है? भूल गए? कौन सा है? Then align two or more sequences. सर ब्लास्ट एंड में अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस पे क्लिक करेंगे, अगर दो सीक्वेंस को अपन मैंने यहाँ क्या लिखा है देखो ना, है ना? मैंने स्पेसिफिकली लिखा, क्या लिखा है? I have to बस I have to find the homology among the two sequences. Whose homology? Whose homology? I don't want to come search through the database, right? Which program can I use? ये है ना? इसको बोलते हैं ब्लास्ट 2, भूल गए? ये ब्लास्ट 2 प्रोग्राम है, समझे? मैंने यहाँ पे दो ही सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं है? अभी कौन बोल रहा था? गुलशन था क्या? यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस पे क्लिक करके अपन दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, यही चीज बोल रहा हूँ, यही तो बोला। देखो यहाँ समझ रहे हैं? तो आप अलाइन टू और मोर सीक्वेंस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता ऐसा, तो मैं कौन सा करता? कौन सा लेता? आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। ब्लास्ट ब्लास्ट में, हाँ ब्लास्ट में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कीप योर ब्रेन वेरी स्ट्रेट, ठीक है? जहाँ ट्विस्टर हो वहाँ ही ट्विस्टर है, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन के आसान आंसर, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नेट सेट में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे, बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे रहते जो सेट करते हैं अगला वाले को ट्विस्ट में डालते हैं। चलिए, होमोलॉजी रिलेटेड टू व्हाट? होमोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये वर्ड जो है ना होमोलॉजी टर्म होमोलॉजी रिलेटेड टू व्हाट? इसका आंसर कीजिए। इसके दो तीन पॉसिबल आंसर है, पर मैं जो चाहता हूँ वो अगर किसी ने आंसर दे दिया तो मैं उसको खुश हो जाऊंगा उसके ऊपर। जो मैं चाहता हूँ आंसर होना चाहिए, टर्म होमोलॉजी रिलेटेड टू व्हाट? टाइप करिए। सबमिट। Closeness between the two sequences, species relationship with common ancestor, nucleic acid and protein sequence. सबके आंसर प्रोटीन और किसके क्या है? एंसेस्टर्स। हाँ, आप लोग करेक्ट हो, पर एंसेस्टर ऐसा वर्ड न डालते हुए अगर मैं उसको ऐसा बोलूं,
है ना? होमोलॉजी का क्या मीनिंग है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बाय सीक्वेंस मैच, है ना? हम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाते हैं वो सीक्वेंस मैच से कंपेयर कर रहे हैं। सीक्वेंस मैच की होमोलॉजी होती है, और अगर सीक्वेंस का मैच हो गया यानी होमोलॉजी हो गई, और अगर होमोलॉजी हो गई तो वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिलेटेड है, ये हम उससे बता रहे हैं। सबने आंसर बराबर दिया, करेक्ट है। Taxonomy database can be searched by putting which type of query? Submit. Only Snail madam has given correct answer. आ गया सबका आ गया। ऑर्गेनिज्म नेम, यस, सडनली देयर हैज राइट। अरे हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है, अच्छी बात। रिजल्ट्स तो आए। ऑर्गेनिज्म नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं। आप टैक्सोनॉमिकल डेटाबेस हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म नेम डाल के ही सर्च कर सकते हैं, प्रोटीन या जीन नेम डाल के हम नहीं सर्च कर सकते। करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से सोचना है। आई वांट टू जनरेट द जीनोम मैप ऑफ द सीक्वेंस जीनोम, व्हिच प्रोग्राम आई कैन यूज? सबमिट। सबमिट। सिंपल है क्वेश्चन। I want to generate the genome map of the sequence genome. Which program I can use? Submit. पहले पढ़ा था ना? सिंपल है। जीनोम मैप बनाते हो ना उस पर से, मैपिंग नहीं करते क्या? मैपिंग यानी क्या? जीन सर्च। मैं वर्ड सिर्फ चेंज कर दिया, अगर मैं जीन लिखता तो फटाक से डाल देते, इसलिए मैं ट्विस्ट डाला उसके अंदर। आप जीनोम का मैप बना रहे हो तो अल्टीमेटली जीन ढूंढ रहे हो ना, समझे? तो जीन मार्क आप इस्तेमाल करो। दिस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी यूज।
I have to submit tRNA sequence using codon translation for protein. How to submit that in NCA? I have to submit the tRNA sequence using a codon translation for protein. How to submit that in NCA? कैसे सबमिट करेंगे? Submit answer. Very good. Gulshan has given a correct answer. We cannot submit. Submit कर सकते हैं क्या? हमने कौन सा सीक्वेंस लिया है? मैं फिर से क्वेश्चन डाला था ट्विस्ट. I have to submit tRNA sequence. tRNA sequence है ना, तो कोडॉन यूज नहीं होंगे उसके लिए ट्रांसलेशन वाले, ठीक है ना? कोडॉन ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं होगा, सिर्फ हम डायरेक्टली tRNA सबमिट कर सकते हैं. Yes. ये आपकी अल्टीमेट टेस्ट है. If I have to search the primer for the protein, ठीक है? If I have the protein sequence, how I will get that? इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो सकता है. मेरे पास प्रोटीन सीक्वेंस है, उसका मुझे क्या चाहिए? प्राइमर. अब बोलोगे सर प्रोटीन का प्राइमर बन सकता है अगर आप सोचो तो. How will I get that? Question बहुत मस्त है. If I have to search the primer for the protein, if I have a protein sequence, protein का sequence है आपके पास, how will I get that? Primer कैसे मिलेगा? आपने कोई भी लिखा होगा ना, उसके अंदर वो आंसर नहीं है. आपने जितना पढ़ा उसको सब उठा के डालना उसके अंदर, तब आप ढूंढ पाएंगे उसका प्राइमर. जितना भी सीखा वो सब सोचना पड़ेगा कैसे होगा, क्यों होगा. सिर्फ पैसा सिर्फ सोचने वाले को ही मिलता है. जब तक आप सोचोगे नहीं, अपने दिमाग से क्रिएटिविटी नहीं निकालोगे, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा. कोई अगला वाला पैसा फ्री में नहीं देगा. मेरा क्वेश्चन बड़ा मस्त है. देखो, इफ आई हैड टू सर्च द प्राइमर फॉर द प्रोटीन. प्रोटीन के लिए तो प्राइमर कभी नहीं बनते, बट इफ आई हैव प्रोटीन सीक्वेंस, हाउ विल आई गेट दैट? इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो बायोइनफॉर्मेटिक्स. Submit. Very good. Gulshan, you are a right person. You are really learning. यानी प्रोटीन से क्या करेंगे हम? mRNA में कन्वर्ट करेंगे और mRNA से फिर प्राइमर ब्लास्ट करेंगे. बहुत सिंपल था अगर आप सोचो, है ना? वेरी गुड.
तुम मेरे को कॉम्पीट कर रहे हो, मैं तुमको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। जोकिंग, चलो अच्छी बात है, ठीक है। इफ आई हैव टू सर्च अ प्राइमर फॉर अ प्रोटीन, इफ आई हैव प्रोटीन सीक्वेंस, हाउ विल आई गेट दैट? सिंपल है, प्रोटीन सीक्वेंस है ना आपके पास, तो प्राइमर किसका बनता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बनता है। तो आप प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करोगे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? टी ब्लास्ट एन। टी ब्लास्ट एन में डालोगे तो उसका एमआरएनए मिलेगा। जो एमआरएनए मिलेगा उसका आप प्राइमर बनाएंगे, ऑटोमेटिकली उस प्रोटीन का क्या बन गया? प्राइमर। ठीक है, वेरी गुड। If you want to compare the gene with the gene, which type of alignment it is? If we compare it with the gene with the genome, कौन से टाइप का अलाइनमेंट है? कौन से टाइप का अलाइनमेंट है वो मुझे बताना है। पहला वाला अलाइनमेंट कौन सा है और दूसरा अलाइनमेंट कौन सा है, ये बताना है, ए और बी। सबमिट। वेरी गुड, वेरी गुड। Akansha is given first, correct answer. First is the local alignment, second is the global alignment. Yes. So this is the answer. First is the local alignment and second is the global alignment. पढ़ा था हमने? छोटे से छोटा कंपेयर कर रहे तो लोकल हो गया, छोटे से बड़ा कंपेयर कर रहे तो ग्लोबल अलाइनमेंट हो गया। पढ़ा था ना हमने? हाँ। In phylogenetic analysis, which software will give you the scoring matrix information? इसका scoring matrix मिला था, याद होगा तो कौन सा सॉफ्टवेयर था?
सबमिट। मुश्किल क्वेश्चन है। EMBL का जो कस्टम डब्ल्यू था वो हमने KEGK का यूज किया था तो उसमें नहीं आया वो, है ना? याद है ना? Look, if I have a gene or a protein sequence, so gene and protein sequence, और नहीं, मेरे पास gene sequence भी है और protein sequence भी है. Which one will be easy to get mRNA of the same? किससे मुझे mRNA आसानी से मिल जाएगा? gene से मिलेगा कि protein से? सोच के आंसर देना, ये इतना आसान नहीं है. दोनों है आपके पास, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी, आपको बीच वाला ढूंढना है. Which one will be easy to get the mRNA of the same? ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. If I have a gene and a protein sequence, which one will be easy to get the mRNA of the same? सबमिट करेंगे, टाइम लगेगा मुझे लग रहा है. करिए, टाइप कर रहा है कोई? जी. Protein sequence will be exact mRNA, whereas gene may not give exact mRNA. और एक ने बोला जीन. अब दो साइड में दो वॉरियर खड़े हो गए, एक बोलता है प्रोटीन, एक बोलता है जीन. अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा. चलिए इसको प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए सोच लें. चलिए अपन जीन से शुरू करते हैं ना. जीन से अगर मैं mRNA तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या तकलीफ होने वाली है, सोचिए. क्या पता रहना चाहिए मुझे? जीन से mRNA में जाने के लिए मुझे क्या पता रहना चाहिए? बोलिए. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. थोड़ा जोर से बोलिए. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो जीन तो है हमारे पास में ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. बस उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को mRNA में कन्वर्ट करना है. तो तकलीफ क्या है, कहाँ रुक सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या यूज करना है? ब्लास्ट एन. ब्लास्ट ब्लास्ट एन. ब्लास्ट एन करके कैसे करेंगे? जीन को
को डायरेक्टली mRNA में कन्वर्ट करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या स्टेप्स होंगे बताइए मुझे, क्या स्टेप्स होंगे? एक जीन है हमारे पास में, वो जीन का सीक्वेंस आपके हाथ में, आपको उससे mRNA बनाना है, तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे? हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है ना, एक हिसाब से, है ना? अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, हम तो बड़े तोप तुर्रम था बनते हैं ना बायोलॉजी में, जीन से ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बन जाता है, ऐसे शब्द फटाफट बोलते हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, जीन से क्या बनाना है? mRNA बनाना है। हमको एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन करना, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा कि सिंपली ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा? अरे हाँ या ना बताओ, सोचो ना। हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, बस ये चीज पहले सोचो। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या लगता है आपके पास में? कुछ लगता है कि नहीं लगता है? अरे कुछ भी तो नहीं लगता है ना, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो बनाना है आपको। नहीं समझा क्या? जैसा मैंने यहाँ बताया था आपको, याद होगा तो। यही था ना, ये आपका सीक्वेंस है, इसका आप सीधा सीधा सेकंड स्ट्रैंड बना दो, कोई बड़ी बात है क्या? इसका सेकंड स्ट्रैंड कौन रहेगा? सेकंड स्ट्रैंड कौन रहेगा इसका? अरे बताइए। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा? यहाँ यू रहेगा ना, बराबर है ना? तो ये तो बन जाएगा। तो जीन से mRNA बनाना आसान है, बराबर है, बराबर है, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस यस। पर अगर हम प्रोटीन से लेते हैं, प्रोटीन से लेते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस होगा तो क्या होगा? प्रोटीन में हमको पढ़ा बताया ना कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से ट्रांस ये होता है ना, तो फिर हमको मुश्किल हो जाएगी कौन सा कोडॉन पुट करूं। नहीं समझ रहे? नहीं समझा? अरे एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होता है ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा कोडॉन पुट करना चाहिए। नहीं समझा? पर जीन तो सीधा सीधा है, जीन खुद को बस ए टू यू है ना, एक टी के जगह यू फॉर्म कर रहा है, टी के जगह यू फॉर्म कर रहा है, जी के समय से सी, तो आसान कहाँ से रहेगा? जी से। समझा क्या आपको पॉइंट? इसमें रिवर्स जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, इसमें रिवर्स जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके पास में लीड नहीं है, ठीक है? ये लॉजिक से सब समझने चाहिए आपको, ठीक है? अभी क्लास क्वेश्चन, ठीक है? If I had to compare more than two sequences, which software I will use? दो से ज्यादा सीक्वेंसेस कंपेयर करने को बहुत आसान है, जल्दी बताइए आंसर। आंसर आंसर वेरी गुड, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, राइट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हम यूज करेंगे। ये करेक्ट है, करेक्ट है, राइट है। अब नेक्स्ट ट्विस्टर,
If I have to check the closeness of two or more species in cluster W, what is that point? What is that point? Help us to find out distance or evolutionary distance. कौन सा वो point है जिससे हम evolutionary distance या distance पता करते हैं, या फिर closeness है या दूर है वो पता करते हैं? उसका सिर्फ एक नाम है, वो नाम मुझे बताना है। उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर नहीं आएगा। आंसर है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेक्ट है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के अंदर मैं क्या बात पूछ रहा हूँ, उसके अंदर एक कौन सा पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो डॉट था ना, डॉट, उसको क्या बोलते हैं? कंसेंसस सीक्वेंसेस। नहीं, वो क्लस्टर डब्ल्यू में हो गया, अलाइनमेंट में हो गया। व्हाट इज दैट पॉइंट? कंसेंसस सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, पर वो नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि उससे डिस्टेंस नहीं बता सकते, उससे डिस्टेंस नहीं बता सकते, उससे मैच बता पा रहे। व्हाट इज दैट पॉइंट बता दो? नोड, ठीक है, उसको नोड बोलते हैं। वो जो छोटा डॉट था ना, हर एक से वो डिवाइड होते गए थे, दो तीन मैच हो रहे थे, उसको बोलते हैं नोड। वो नोड से वो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस पता चलता है, ठीक है। और उसको जो मैच मिलता है, जो ग्रुप में आते हैं, उसको बोलते हैं क्लेड। क्लेड जो साथ साथ में जुड़ते हैं वो क्लेड है, ठीक है। क्लेड्स को क्लासिफाई करने वाला कौन होता है? नोड, ठीक है। चलिए, तो आज आपकी एग्जाम यहाँ खत्म हुई है। अपने बहुत अच्छा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमको बहुत सारी चीजें आती है ना। अगर हमको ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आई थिंक मैं आपका 90% श्योर हूँ कि आपको बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं यानी आप अच्छे से लर्न कर रहे हो। फिर भी आप प्रैक्टिस जरूर करो, खुद को क्वेश्चंस पूछते जाओ और ट्राई करो उसको सॉल्व करने, ठीक है। तो टुमारो विल मीट अगेन एंड टुमारो विल लर्न रामाचंद्रन प्लॉट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कल से हम प्रोटियोमिक्स के स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में जाएंगे, तो कल से हम पढ़ेंगे रामाचंद्रन प्लॉट एंड आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।